Okay, good morning everyone. So, let's start with the today's class. All right. So, good morning everyone. Let's start with the today's class, and since now there is no hindrance of noise and everything, so let's just start. So, this class, okay. All right. सो आज हम करेंगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया. ओके, ये आपकी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है. ओके, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस विच यू गेट फ्रॉम जनरल अवेयरनेस ऑल्सो एंड ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स का भी ये पार्ट है. ओके, तो ये इकोनॉमिक्स प्लस जनरल अवेयरनेस दोनों में ये काउंट होता है ये टॉपिक. ऑल राइट, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सबसे पहले थिंग, आई होप आप लोगों ने अपनी क्लास नाइन्थ इससे पहले अगर इसके बारे में जो भी अब हम आज डिटेल डिस्कस करेंगे आफ्टर द क्लास, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि गूगल पे जाके क्लास नाइन्थ में इकोनॉमिक्स की बुक है एनसीईआरटी, उसका एक लास्ट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, उसको ज़रूर स्टडी करें. ओके, इट इज़ रिगार्डिंग द फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये उस चैप्टर का नाम है. एंड उसको ज़रूर पढ़ें कि कैसे हमारे इंडिया में पहले से ही मतलब फूड डिस्ट्रीब्यूशन और फूड सिक्योरिटी को लेके जो जो प्रॉब्लम्स है और उसको कैसे कवर किया है. छोटा सा चैप्टर है, उसको पक्का कवर करें. ओके, बाकी तो यहाँ पे अब हम कवर करने ही वाले हैं. ओके, सो टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया, actually it was initiated by the planning commission of india. Okay, and who actually collects the data and initiates this program is nsso. So can somebody tell me what is the authority under which this nsso comes? nsso कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? NSSO is under the Ministry of Statistics. Okay, and इसको exactly हम ऐसे भी लिखते हैं MOSPI. Okay, so Ministry of Statistics and Program Implementation. All right, ये it basically conducts all the socio-economic surveys, data collections, census, ये सब कुछ. Okay, so poverty की जितनी भी details हैं that is also collected by who? MOSPI, that is Ministry of Statistics and Program Implementation through National Sample Survey Organization. All right. So what is poverty elevation? Poverty elevation, it is basically a set of steps which is taken by our country. Okay, the economic and humanitarian way to eradicate the poverty in the country. Okay, since जो वर्ल्ड बैंक है वो बोलता है कि if a person is earning $1.9 in a day, he or she will be considered as somebody who is living under the extreme poverty. Okay, this is the good morning everyone, good morning. अभी हमने बस स्टार्ट ही किया है. ओके, दिस इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम विच वी आर डूइंग टुडे. सो बेसिकली ये तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक इंफॉर्मेशन है कि बीपीएल के अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन एक लाइन होती है दैट ऑल दोज हु आर अर्निंग लेस देन $1.9, okay, they are considered as poor. Can somebody tell me what is the BPL in India? How much how much monthly income or per day income is considered as a poor benchmark in India? Anyone? Try. ओके, इंडिया में एक्चुअली लास्ट जो रंगाराजन कमेटी आई थी
उसके अकॉर्डिंगली इट इज वर्किंग. ओके, एंड नाउ इट इज बीइंग formulated by नीति आयोग. Okay, after 2015. So they say that in rural area, if a person is earning 972 rupees per month, okay, यानी कि 32 rupees per day. So this is the benchmark for poverty. तो इससे नीचे है तो it is in a BPL line. Okay. No. Rangarajan Committee 2014. Okay. And according to urban, if a person is earning 1407, that is 1407 rupees per month. Okay. That is 47 rupees per day. So this is the benchmark for poverty. Okay. अगर इसके ऊपर है तो poverty में नहीं है, इससे नीचे है तो it is considered as a BPL. Okay, below poverty line. Okay. So according to the World Bank, if a person has 1.9, he or she is living in extreme poverty, and currently 767 million people in India, they are falling under this category. So whenever this last official data was released in India, it was released in 2011, and still economic survey भी होता रहता है. Okay, उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डेटा आता रहता है, बट जो वैलिड डेटा ऑफिशियली हमारे पास आया था दैट वाज ऑफ 2011. उसके बाद सेंसस नहीं हुआ है, उसके बाद अभी कंटिन्यूसली नीति आयोग के अंडर जो भी ये सीए एनआरसी वगैरह होएगा उसके बाद ही कुछ डेटा रिलीज होएगा थोड़े टाइम में. ओके, तो तब हमें एग्जैक्ट पिक्चर समझ में आएगी. सो अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा, 268 पीपल इन इंडिया आर सर्वाइविंग लेस देन $1.9. ओके, सो दैट इज व्हाई देयर आर सो मेनी स्कीम्स. ओके, so BPL is also a benchmark set by the government of India to increase the threshold income. Okay, threshold income means overall income of the family. Okay, so how is BPL being measured in India? This is solely depending on what? Per capita income. What is per capita income? Can somebody tell me? Per capita income. Try to use your inbox and tell me. Average income per person. Okay. ऑल राइट. ओके, समवट नियर बाय, बट एग्जैक्टली अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम होता है आपका जो टोटल नेशनल इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन. तो एक तरीके से हाँ एवरेज ही हो गया, बट इसको अगर हम बोले तो हाँ इसको हम यही सिंपल भाषा में बोले तो हम इसको बोल सकते हैं एवरेज इनकम पर पर्सन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली. ओके, सो वेरी गुड प्रियेश. एवरेज इनकम पर पर्सन इज कॉल्ड योर per capita income. Okay, so it works on, just a second. All right. So this BPL means that when you are calculating your per capita in India and according to the level of prices, जितनी भी minimum income है चाहिए basic goods and services, एक basket of goods and services को खरीदने के लिए, if it is that portion is less, then a somewhat person is considered as in below poverty line. Okay, so the proportion of population who are not able to achieve, जो लोग नहीं खरीद पाते हैं, उस कैटेगरी में नहीं आते, उस बेंचमार्क में नहीं आते हैं, उनको हम बोलते हैं बिलो दिस पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी रेशियो और हेड काउंट रेशियो. ठीक है, ये तीन वर्ड्स हैं, तो इन तीनों में से कोई भी वर्ड आता है इसका मतलब बीपीएल, बेंचमार्क इज बीपीएल. ओके, सो इसको लेके कुछ अप्रोचेस हैं. ठीक है, सो दिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय वाई के अलग कमिटी इन 1979. ओके, एंड क्राइटेरिया फॉर मेजरमेंट फॉर बीपीएल वर वेरी डिफरेंट. रूरल का अलग था, अर्बन का अलग था. ओके, बट करंटली अभी रिसेंटली तो हम नीति आयोग को फॉलो कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू द 10th 5-year प्लान द डिग्री ऑफ डिप्रीवेशन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स स्कोर दैट इज 0 to 4 एंड देयर आर 13 पैरामीटर्स. ओके, फैमिलीज with 17 marks or less, okay, out of 52 marks are classified as BPL. यानी कि कुछ पैरामीटर्स रखे गए हैं, 52 पैरामीटर्स होते हैं, उसमें से अगर किसी के 17 आते हैं तो उसको बीपीएल में क्लासिफाई किया जाता है. ओके, पहले ये 15 था, अब इसको 17 कर दिया गया. एंड पॉवर्टी लाइन इज कैलकुलेटेड इन एवरी 5 years. अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन, द थ्रेशोल्ड इनकम should be more than 962 a month for urban areas and 768 in rural areas. ये उल्टा हो गया. अर्बन का 14.7 है रंगाराजन कमेटी के अकॉर्डिंग,
ये अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये एक्चुअली ये वाला जो डेटा है ये है आपका 2012 का डेटा, और ये है रंगाराजन कमेटी का 2014। तो अलग अलग कमिटीज ने अलग अलग अपने प्रोपोर्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ना ये उस कमेटी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में किसका पूछा हुआ है, ओके। तो बहुत सारी कमिटीज आई हैं, तेंदुलकर कमेटी आई है, रंगाराजन कमेटी आई है, नीति आयोग आया है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं बीपीएल की, ओके। सो करंटली अगर हम चलें तो करंटली इट इज अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, okay. Now because so many people are under bpl, okay, below poverty line, so there are various 5 year plans। आपको पता होगा हमने बहुत सारी इकोनॉमिक प्लानिंग करी जिसमें हमने 5 year प्लान्स निकाले थे पहले, जो कि 1951 से स्टार्ट होके 2017 तक 5 year प्लान्स रहे हैं। उसके बाद हमारा नीति आयोग आया है, ओके। सो जितने भी हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम रहे हैं 5 year प्लान्स में, उसके बारे में ये थोड़ी सी डिटेल्स हैं, ओके। फर्स्ट 5 year प्लान इट फोकस्ड मेनली ऑन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, सो दे एम्ड एट अचीविंग ऑल राउंड बैलेंस डेवलपमेंट, ओके। सेकेंड 5 year प्लान इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके। तो ये नेहरू मेलानोबिस मॉडल के ऊपर था, विच हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग 25% ऑफ द नेशनल इनकम। थर्ड 5 year प्लान 1961 से लेके 66 तक, because of Indo-China war it was a complete failure plan, so there was not so much of growth, okay। फोर्थ 5 year प्लान, ये सिर्फ एक छोटी सी समरी दी हुई है, आपको अलग से एक टॉपिक है। आई थिंक मैंने जब सबसे पहले क्लास ली थी तो तब मैंने वो एक डेमो क्लास थी, उसमें मैंने इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ाया था, बट वैसे भी मैं इसको नेक्स्ट अप्रैल में कवर करने वाली हूँ, इकोनॉमिक प्लानिंग। इसके ऊपर आपको एक डिटेल डॉक्यूमेंट मिलेगा, ओके, कि कितनी कितनी कमिटीज रही हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे स्टार्ट करी है, हर एक प्लान में क्या क्या कवर हुआ, कौन कौन सी उसमें स्कीम्स इंक्लूड हुई थी, उसका एक पूरी क्लास होगी, ओके। तो ये सिर्फ मैंने पॉवर्टी एलिवेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डिटेल्स और डेटा मैंने यहाँ पे डाल दिया है, okay। Fourth 5 year plan it aimed at increasing the national income by 5.5%, okay, so that you can create a stability, inequality को reduce करें, social justice को achieve करें, okay। फिफ्थ 5 year प्लान मेनली फोकस्ड ऑन द रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, ओके, ये इंदिरा गांधी जी लेके आई थी, which aimed at the largest section of poor masses above the poverty line, okay। It assured minimum income of 40% per month, all right, and but this plan was terminated in 1979 because of emergency। Then sixth 5 year plan, okay, removal of poverty was the main objective, improving the lifestyle, ये सब था। Seventh 5 year plan it was a good plan, it actually focused on improving the life standard of people, okay, for poor especially, and reduction for the poverty, okay। Eighth 5 year plan it aimed at the employment generation but failed at achieving the targets, okay। And in eighth 5 year plan only आपकी ग्लोबलाइजेशन, ये एलपीजी, तीनों स्कीम्स लॉन्च हुई थी, ऑल राइट। नाइन्थ 5 year प्लान फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड देन देर इज दिस 10th 5 year प्लान और 11th 5 year प्लान है, जिसमें एक्चुअली में वर्क हुआ है, जिसमें थोड़ा सा पॉवर्टी को रिड्यूस करने की कुछ पॉइंटर्स आए हैं, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, ये सब है, ओके, ऑल राइट, ओके। आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट अभी तक, प्लीज आस्क। ओके ओके ओके, ऑल राइट, okay। Now coming back to poverty elevation program of India, so as per 2011 and 12 planning commission says that 25%, 7% of 25.7% of rural population is under bpl, and in urban it is 13.7, which is a very big number, okay। And अभी एक रिसेंटली एज सच सेंसस तो नहीं हुई है, बट हमारे पास एक हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, this was conducted, okay, and it was conducted in August 2022 से लेके जुलाई 2023 तक, एक साल का एक सर्वे था ये।
इसमें इट वाज बीइंग कैलकुलेटेड दैट हाउ मच इज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन, ओके, अलग अलग रूरल और अर्बन एरियाज में। ऑल राइट, तो जिससे ये डेटा आया है कि अभी रिसेंटली रूरल में 7.2% ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर द बीपीएल और अर्बन का पॉवर्टी रेट है 4.6%। ओके, तो ये रिड्यूस तो हुआ है बट अभी भी इतनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल कंसिडर्ड एज इन बीपीएल। ओके, वन मोर थिंग, इसमें एक और चीज भी डिराइव हुआ था दैट पॉवर्टी लाइंस के लिए न्यू पॉवर्टी लाइंस डिराइव हुई थी फॉर रूरल इफ 1622, ये आप लिखते जाइए अपने ना उसमें नोटबुक अगर आप साथ लेके बैठे हुए हैं, 1622 पर पर्सन अगर कोई स्पेंड कर रहा है। ओके, तो ये एक बेंचमार्क है, इससे नीचे अगर कोई स्पेंड कर रहा है, ओके, सॉरी इतना इनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि अपने कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो वो बीपीएल के अंडर कंसिडर होगा, यानी ये बेंचमार्क है। इससे ऊपर होगा तो बीपीएल में नहीं होगा, इसके नीचे या इसके ऊपर होगा तो बीपीएल में कंसिडर किया जाएगा। ओके, और अर्बन में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर आपका 1929 रुपीज यानी कि ऑलमोस्ट 1950 रुपीज, ओके, ये है, तो इसको बेंचमार्क सेट कर रखा है बीपीएल का, यानी कि इतना स्पेंड होना चाहिए। अर्निंग नहीं है ये, स्पेंडिंग कंजम्पशन के ऊपर, यानी कि जो हम डेली का खर्चा करते हैं ना कंजम्पशन, कुछ भी खाने पीने के लिए, उसका खर्चा के लिए। ओके, ये कंजम्पशन रिपोर्ट रिलीज हुई थी 2023 में। ओके, बाकी मैंने आपको एक पिछली क्लास में एक और चीज भी बताई थी, हाँ नीति आयोग है लेकिन अभी उसमें बहुत चेंजेस हो रहे हैं, तो अभी रिसेंटली देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ा करो आप, ठीक है, मैं शायद कल की क्लास आपकी इकोनॉमिक सर्वे की ही ले लूंगी। ये सारा डेटा इकोनॉमिक सर्वे और HCASE सब कुछ छोटी छोटी चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ओके, 4-5 साल में इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता रहता है। ऑल राइट, ओके, एक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कर रहे थे कि एक MPI भी होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, वो भी कैलकुलेट होता है, तो वो 2023 की रिपोर्ट में भी MPI जो भी कैलकुलेट हुआ था उसको भी चेक करना, और एक स्टेट वाइज पॉवर्टी रेट्स भी आए थे उसको भी चेक करना। ओके, उसमें भी अलग अलग डेटा आया था। ओके, आगे चलते हैं इसमें। आगे इसमें है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। अब आगे पूरा आज तक के जितने भी स्कीम्स आई हैं, ओके, उसके बारे में। ऑल राइट, सबसे पहले स्कीम है 1978 की, ओके, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, this program was initiated by Ministry of Rural Development, which is to raise the family and to identify the target groups who are below poverty line and to bring them अबव द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना, सेल्फ सस्टेनेबल ऑप्शंस क्रिएट करना उनके लिए, ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ओके, एंड जितनी भी रूरल डेवलपमेंट की जो जो चीजें उनके बारे में ही है। ठीक है, इसमें अर्बन इंक्लूड नहीं था, इसमें सिर्फ और सिर्फ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। नेक्स्ट, ये तो बहुत फेमस है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ओके, तो आप लोगों में से अगर किसी को जैसे टीवी सीरीज देखने का शौक है तो उसमें एक पंचायत नाम की सीरीज है, उसमें ये इस स्कीम के बारे में बार बार यूज होते हैं कि हाउसेज अलॉट करते हैं। ओके, तो 1985 में ये रिलीज हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में ये इंक्लूड होता है। इसमें था टू क्रिएट हाउसिंग फॉर everyone along with providing 13 lakh housing units to rural areas, okay, and to provide loans to subsidize rates to the people, okay, and also to initiate the wage employment opportunities to household by providing employment on demand through specific wage guarantee program. okay, एक minimum wage system set कर रखा है, सब्सिडी दे रखी है, 13 लाख हाउसिंग यूनिट्स हर साल लोगों को अलॉट किए जाएंगे, और ये 1985 में रिलीज हुआ था। ओके, स्टार्ट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ओके, ये 95 में रिलीज हुई थी। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, सो दैट 65 ईयर्स से ऊपर जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं उनको पेंशन
स्कीम्स मिल सकें, ओके, सीनियर सिटीजन्स को उनको पेंशन मिल सके। एंड इट प्रोवाइड्स मंथली पेंशन। ये जब 95 में स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो 200 रुपीज का ही था, ओके। आज की डेट में ये आई थिंक बढ़ के 2500 रुपये या कुछ 26,000 है। स्टेट वाइज अलग अलग है, आई थिंक अलग अलग स्टेट्स में किसी किसी में 5,000 से 6,000 है। नेशनल पे आई थिंक ये 2,500 या कुछ 3,000 के उसके अंदर है, ओके। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, ओके, 1995 में ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से स्टार्ट की थी, टू प्रोवाइड अ सम ऑफ 20,000 टू द बेनिफिशियरी हु विल बी नेक्स्ट हेड ऑफ द फैमिली आफ्टर द डेथ ऑफ प्राइमरी ब्रेड विनर। यानी अगर आप जैसे कि किसी फैमिली में जो जॉब पे थे उनकी डेथ हो जाती है, तो जो उनका नेक्स्ट किन है उसको 20,000 रुपीज देना ताकि वो फैमिली को चला सके, ओके। एंड इसमें आगे जाके उसी की जगह पे जॉब्स देना भी वो भी इसी के अंडर ही आया था, ओके। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये 99 में स्टार्ट हुआ था एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द विलेज पंचायत्स, ओके, to develop the infrastructure of the rural areas, roads, schools and hospital, and to provide sustainable wage employment to all the families who are in below poverty line. Then Annapurna 99 से 2000 Ministry of Rural Development to provide 10 kg of food grains to eligible senior citizens who are registered under the BPL lines, ओके। वो are नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स जो भी आते हैं उन सबको 10 kg का फूड प्रोवाइड करना। Food for Work Program 2000, okay, Ministry of Rural Development, and it aims achieving the food security through wages, okay। ये FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से फूड प्रोवाइड करने का PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए ये, ऑलराइट। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, ओके। इसका ईयर मेंशन नहीं है, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। संपूर्ण ग्रामीण 2001 का इनिशिएटिव है ये, ओके। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज हुआ था। 2001 का इनिशिएटिव है और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए और उनको न्यूट्रिशियस फूड के लिए ये लॉन्च हुआ था। मनरेगा स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ओके। ये तो पूरा प्रॉपर एक एक्ट के फॉर्म में रिलीज हुआ था, यानी एक स्पेसिफिक कानून ही बन गया था, ऑलराइट। 2005 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दे प्रोवाइड 100 days of assured employment to people in rural household, okay। 1/3 of the proposed jobs would be reserved for the women, and the central government will also establish the national एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स, ओके। सो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर जो यूटी में आते हैं वो उन सब के लिए ये 100 days का गारंटी प्रोग्राम है फॉर एम्प्लॉयमेंट, ओके, ऑलराइट। एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी विद इन द 15 days। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस, सीरियल्स through the expansion of productivity, okay, in a sustainable manner in identified district, यानी कि वो वाले डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कम प्रोडक्टिविटी होती है वहां पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इट इवॉल्व्स आउट the need to diversify the needs of the rural poor and provide them jobs with a regular monthly basis, ओके। वही ना, देखो कितनी सारी अच्छी स्कीम्स इंक्लूड करती है गवर्नमेंट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो नीचे लेवल तक एग्जीक्यूट होने के ऊपर आती है ना, यानी गवर्नमेंट से तो पास होके आ गई है, जब वो नीचे डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर गांव में फिर वो पंचायत के बाद फिर सरपंच उसको इम्प्लीमेंट करेगा, वहां तक आते जब वो इम्प्लीमेंट हो रही होती है ना, वहां इतनी करप्शन हो जाती है कि ये स्कीम्स फेल हो जाती हैं। तो मेन जो रीजन है वो है रेड टेपिज्म, करप्शन, ठीक है, और अपने फेवरेट लोगों को ही पकड़ाते रहते हैं। तो यहां से प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं ना, ये मेन प्रॉब्लम है। अदरवाइज इंडिया इज स्टिल अ गुड कंट्री टू लिव इन, बस यही है ओवर पॉपुलेशन और थोड़ी सी करप्शन कम हो जाए तो डेवलप्ड भी हो जाएंगे हम। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2013, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से था, ठीक है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। कैन समबडी टेल मी हु ऑल आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स?
ये भी आपको क्लास 9th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। बट स्टिल, एनी आइडिया? SHG, हाँ, काइंड ऑफ एनजीओज ही होते हैं, ठीक है, वॉलेंट्री ग्रुप्स होते हैं ये, ठीक है, 10 से 20 मेंबर्स का, ज्यादा नहीं, छोटा सा ही ग्रुप होता है ये। ओके। एंड इसमें इनका मेन पर्पस होता है कि जैसे कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसमें हेल्प करवाते हैं वो, जैसे लोन्स प्रोवाइड करना, ठीक है, पैसे वैसे प्रोवाइड करना, किसी जैसे कोई फीमेल है वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसको उसके घर में ज्यादा अर्निंग का सोर्स नहीं है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये सब कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू होता है। ओके। एंड ये बहुत सारी जो जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें ये हेल्प करते हैं, जैसे नबार्ड बैंक है हमारा, वो जो कि एक एग्रीकल्चरल बैंक है, ठीक है, फार्मर्स के हेल्प के लिए इस्टेब्लिश हुआ है। तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू ही आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनको हेल्प चाहिए, जिनको सब्सिडीज चाहिए, जिनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चाहिए। हाँ, कादमश्री प्रोजेक्ट विच वाज स्टार्टेड इन केरला इन 1988 एंड इट वाज अ कम्युनिटी एक्शन टू इरेडिकेट द पॉवर्टी। वेरी गुड। ये क्वेश्चन भी आपकी आज मैंने डाला हुआ है इसमें। तो ये एक इनिशिएटिव रहा है ताकि लोगों की हेल्प कर सके। ओके। और इसमें गवर्नमेंट स्कीम एक सबसे ज्यादा जो इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है वो इन्होंने किया है डे NRLM, ये एक स्कीम थी, यानी कि दीन दयाल अंत्योदय योजना था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ओके, जो कि यही है आपका। ऑलराइट। इसमें फाइनेंशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसको लेके था, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोवाइड करे बनाए गए थे। ओके। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014, ये बैंकिंग के लिए था ताकि लोग अपने बैंक्स में अकाउंट खुलवा सकें, पेंशन वगैरह, मतलब एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ हम पॉपुलेशन को लेके जा सकें। ओके। इट एम्ड इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी, पेंशन, इंश्योरेंस एंड अटेन्ड द टारगेट ऑफ ओपनिंग 1.5 करोड़ ऑफ बैंक अकाउंट, और ये सक्सेसफुल भी रहा था। द स्कीम वॉज पर्टिकुलरली टारगेटिंग द अनबैंक पुअर। इसमें ये था कि आप ₹0 के ऊपर भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो जनधन योजना के अंडर, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट फोकस on fresh entrants for the labor market, especially the labor market and class 12th 10th and 12th dropouts, जिन्होंने आगे पढ़ाई नहीं करी उनको कोई ना कोई स्किल सिखाना। ओके। ताकि वो आगे जाके स्किल उसमें जा सकें। ऑलरेडी वैसे आईटीआईज जितनी भी है ना आपकी, वो इसी के ऊपर ही है। ओके। ऑल्दो उसमें ड्रॉप आउट्स का नहीं है, उसको आगे की कंटिन्यू पढ़ाई कंटिन्यूटी के अंदर ही रखते हैं, लेकिन ये स्पेशली उनके लिए थी जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है, उनको आईटीआई भेज के कोई ना कोई स्किल सिखाना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गया या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में उनको पढ़ाना ताकि वो वहां पे जाके जॉब्स कर सकें, उसके बारे में था। ओके। संसद आदर्श ग्राम योजना 2014, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू डेवलप द इंस्टीट्यूशनल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन 3 विलेजेस बाय 2019। ओके। द स्कीम एम्स टू डेवलप 5 विलेजेस, आदर्श विलेजेस, यानी कि मॉडल विलेजेस क्रिएट करना 2024 तक, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन किया है, डेवलप किया है और प्रोग्रेस करी है। ओके। एंड मॉडल विलेजेस की अगर हम बात करें तो ये स्कीम काफी अच्छी सक्सेसफुल रही है, काफी सारे विलेजेस मॉडल विलेजेस के अंडर आए हैं। इसके अंदर स्कूल्स को भी डेवलप करने का रहा है। आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो कि आप लोग अलग अलग स्टेट से हो। ओके। हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में और हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक एरिया में आप नोटिस करेंगे कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल प्राइवेट की तरह ही मेंटेन करके रखा हुआ है। जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वी हैव संस्कृति मॉडल स्कूल्स। ओके। एंड इन पंजाब ऑल्सो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनको हम एमिनेंस स्कूल बोलते हैं। ओके। ये भी सारा मॉडल विलेजेस के अंडर ही आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंडर ही आया है। ओके। ये वो स्कूल्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने ध्यान दिया है प्राइमरी एजुकेशन से लेके मिडिल एजुकेशन तक, और उन स्कूल्स को प्रॉपर फंडिंग मिली है ताकि एक अच्छी सी ड्रेस और यूनिफॉर्म हो सके, बच्चों की बुक्स वगैरह वैसे तो सभी को मिलती है, लेकिन उनको थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा फंडिंग हुई है ताकि वो लोग उनके जो स्कूल्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स को कंपटीशन अच्छे से दे सके।
तो ऐसे स्कूल्स में, ये कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे अभी भी एडमिशन भी नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता है। क्लास फर्स्ट में एडमिशन हो गया तो हो गया, अदरवाइज उसमें मिलता भी नहीं है, क्योंकि उनका एक सेट है कि वो 40 स्टूडेंट से ज्यादा एक क्लास में नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस, ओके, लाइफ कवरेज टू द पुअर एंड low income sections of the society. Okay, so they offer assured amount of minimum 2 lakhs. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, this is also in 2015, Ministry of Finance. This is also to have insurance for the underprivileged section of the society. Then National Maternity Benefit Scheme 2016, Ministry of Health and Family Welfare. Every pregnant mother who is aged above 19 years will get rupees 6,000. Okay, and the sum will be provided normally from 12 to 8 weeks before the birth. Okay, in 3 installments, and it will be availed even if the child does not survive. Okay, अगर बच्चे का की डेथ भी हो जाती है तो भी ये पैसे मिलेंगे, और ये हर एक प्रेग्नेंट लेडी को मिलेंगे 6,000 रुपीज। ओके, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेशनल गैस, ये नेचुरल गैस सॉरी, ये था टू हैव 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस, ताकि जो ये सम पीपल आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन फ्यूल, वुड, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट है ना, वुड वगैरह के ऊपर और चूल्हे वगैरह, वहां से हटा के उनको एलपीजी के ऊपर लेके आ सके। तो एलपीजी के कनेक्शंस प्रोवाइड करे गए थे लेडीज को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दिस स्कीम प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर अनअकाउंटेड वेल्थ और ब्लैक मनी इन कॉन्फिडेंशियल मैनर, सो दैट फाइन ऑफ 50% ये अवॉइड कर सके। ओके, एंड एडिशनल 25% of undisclosed income is invested in the scheme, which will be refunded after 4 years without any interest. Okay, सोलर चरखा मिशन 2018, ये एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए है, ताकि 1 लाख पीपल विल गेट सोलर चरखा क्लस्टर्स इन रूरल एरियाज। थोड़ा सोलर के ऊपर डिपेंड करें, जितने भी एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है ट्यूबवेल्स वगैरह के लिए, तो उसको सोलर के ऊपर डालना, मैक्सिमम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रही है मेरे स्टेट में, तो मुझे मैंने नोटिस किया है आजकल एग्रीकल्चर फील्ड्स में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, और उसी के ऊपर ही डिपेंड कर दिया है फार्मर्स को। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान 2018, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, टू रिड्यूस द अंडर न्यूट्रिशन फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन, ओके, 2019, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम which was introduced for the old age and social security, and ये 2020 तक के इसमें मैंने इंक्लूड करें। कल मैं इसमें पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और जो भी यूनियन बजट के अंदर जो भी इंक्लूड हो रखा है 2020 के बाद से लेके 2025 तक के, वो मैं लेके आऊंगी आपके लिए। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की तरफ से है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये जितने भी आपके वो वाले हैं ना, वेंडर्स होते हैं, जैसे जिनकी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो छोटी छोटी चीजें बना के बेचते हैं, फॉर एग्जांपल खाने पीने का सामान हो गया, फास्ट फूड का कोई वो हो गया, उनको हेल्प करने के लिए उनको माइक्रो क्रेडिट सिस्टम और प्रॉपर उनको लाइसेंस देना, ताकि वो कहीं पे भी जाएं, क्योंकि उनको पुलिस वाले भी बहुत परेशान करते हैं ना, वो कहीं, क्योंकि वो उनके पास शॉप नहीं होती है, वो कहीं पे भी ठेले लगा लेते हैं। तो उसके लिए है कि उनको प्रॉपर लाइसेंसिंग दी जाए, जिस जगह पे वो लगाना चाहते हैं उसकी भी उनको एक प्रॉपर परमिशन मिलती है, कार्ड मिलता है, लोन मिलता है सब्सिडी पे। ओके, एंड ये जो कोविड-19 के बाद जो ज्यादा इफेक्ट हुए थे उन लोगों के लिए तो ये ज्यादा है, बट अब तो ये इसको सब हर कोई इसको अवेल करते हैं, और वो अपना एक छोटा सा एक कार्ट सेट कर सकते हैं। ओके, बाकी एक हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस, ठीक है, जिसको हम जैसे हम बोलते हैं जो राशन कार्ड के बेसिस पे पहले खाना वाना मिलता था उससे रिलेटेड है। जिस we have allocation of commodities such as rice, wheat, kerosene, sugar to states and union territories. Okay, and they issue राशन कार्ड। और आज की डेट में क्या है, आज की डेट में राशन कार्ड को हटा के अब क्या यूज करते हैं?
हर एक स्टेट में आज की डेट में वी हैव परिवार पहचान पत्र, ओके, फैमिली कार्ड। इट इज नॉट अ राशन कार्ड, इट इज अ मतलब सिमिलर ही है, राशन कार्ड जैसा ही है। अब परिवार पहचान पत्र है, एक तरीके से डोमिसाइल ही हो जाता है वो आपका। दिस इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फूड सिक्योरिटी, ओके। जितनी भी फूड स्कार्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाना फूड ग्रेन्स को, उनके लिए, ओके। So PDS was later relaunched as Targeted Public Distribution System in 1997, controlled by Ministry of Consumer Affairs, Government of India. Okay, and they play a major role in distributing of the all those things so that लोगों को below poverty line से ऊपर लेके आ सके. Okay, now why is employment generation important in India? अब एक चीज ये है हमेशा याद रखना, जो ये बोलते हैं ना कि गरीबों में बांट दो, इट इज अ रॉन्ग थिंग फॉर इकोनॉमिक्स, ओके। फ्रीबीज कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दे आर नॉट गुड, ओके, नेवर एवर। फ्रीबीज आर नेवर गुड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे बेटर है यू जेनरेट the employment programs, okay, you provide them employment. So it is very important that they should be provided employment साइड बाय साइड, सो दैट ये फ्रीबीज का जो एक बर्डन है उसको हम कम कर सकें। हाँ, ये सब सही बोल रहे हैं, ये परिवार पहचान पत्र, वन नेशन वन राशन कार्ड वही है, सेम थिंग वही है, ओके। उसको हम वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में अलग अलग स्टेट्स में, एक्चुअली हमारे स्टेट में इसको परिवार पहचान पत्र बोलते हैं, ओके। हाँ, वन नेशन वन राशन कार्ड, बिल्कुल सही कहा आपने, ओके। तो व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट? अब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज तो फ्री बेस का बर्डन कम करने के लिए होता है, ओके। ताकि फ्री में प्रोवाइड करने से अच्छा है कि आप इन्वेस्ट करवाओ। अगर मैं किसी के ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ, पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे भी तो रिटर्न चाहिए। तो हर कंट्री को रिटर्न चाहिए होते हैं इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, ओके। तो अगर आपको अपनी ह्यूमन पॉपुलेशन को, ह्यूमन रिसोर्स को ठीक करना है, अपना ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक करना है, बेटर करना है, तो उसके लिए प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू देम, ओके। सो वेरी फर्स्ट थिंग, इट विल इंक्रीज द इनकम लेवल ऑफ पुअर हाउस होल्ड फैमिली, ओके, बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ पॉवर्टी, ऑल राइट। सो दैट जो एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का, वो ठीक हो सके, ओके। क्योंकि क्या है, एक हाइपोथेसिस है दैट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इज देयर। सो इसको अगर हम ठीक कर देंगे, सो वी विल गेट दिस स्ट्रेट। इट विल डिक्रीज द रूरल अर्बन माइग्रेशन, ओके। एक मैंने ना कल ही एक रिसर्च पेपर में पढ़ा था कि एक कंपनी है जोहो, आप भी पढ़ना। जोहो इज प्रोवाइडिंग मिलियंस ऑफ रूरल पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट। वो क्या करते हैं, उन्होंने ना एक अलग से ऐसे स्कूल्स ओपन करे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली हर एक रूरल एरियाज में जाके, स्पेशली इन डेक्कन इंडिया, साउथ इंडिया में, दैट दे विल प्रोवाइड स्किल्स एंड ट्रेनिंग बेस्ड स्कूल। इट्स अ प्राइवेट कंपनी, ओके। जिसमें वो क्या करते हैं, वो फीस चार्ज नहीं करते हैं, वो उल्टा उनको इंटर्नशिप देते हैं, वो उनको उल्टा उनको पैसे देते हैं, ओके, कि आप हमारे स्कूल में आओ और आप पढ़ाई करो, स्किल्स लो, और फिर उसके बाद जब वो वहां से पास आउट होते हैं तो वो अपनी ही कंपनी में उनको एम्प्लॉय कर लेते हैं, जिसकी वजह से रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ओके। क्योंकि उनका एक मोटो है कि रूरल से ही स्किल्स डेवलप होंगी, तभी अर्बन पॉपुलेशन को भी सपोर्ट मिलेगा, ओके। तो यस, ये इस तरीके की स्कीम्स को और भी ज्यादा वो करना चाहिए ताकि रूरल अर्बन माइग्रेशन कम हो सके। अभी क्या हो रहा है, लोग रूरल से उठ उठ के अर्बन में माइग्रेट कर रहे हैं टू हैव बेटर लाइफ स्टाइल, टू हैव बेटर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है उससे, वो और भी ज्यादा पुअर हो रहे हैं, ओके। तो उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए पॉवर्टी एलिवेशन के थ्रू, सो दैट दिस कैन बी डिक्रीज्ड, ओके। देन to increase the income level through the employment generation program, so that they can also get education, health facilities and sanitations also, okay। yes, government is supporting urbanization, क्योंकि गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, रूरल को ही अर्बन में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि अर्बन पॉपुलेशन की माइग्रेशन ना हो। तो इसलिए आज के डेट में भी गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग रूरल को ही अर्बनाइजेशन के अंदर लेके आने की कोशिश कर रही है, ओके, सो दैट विलेजेस कैन बी डिक्रीज्ड और अर्बन एरियाज कैन बी इंक्रीज्ड, ताकि उनको फैसिलिटीज, ऐसे कोई
वो नहीं होता है कि हमने उनको गांव को ही शहर में कन्वर्ट कर दिया। इट इज जस्ट सिंपल कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं ताकि लोगों को कहीं जाना ना पड़े। ओके, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही स्टार्ट हो गया था और ये अभी भी इसमें कोशिश करी जा रही है। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जितनी भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बड़ी सिटी है, ओके, हम बात कर लेते हैं, जैसे बैंगलोर की बात कर लेते हैं, ओके। तो बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स पर जितनी भी छोटे छोटे टाउन्स होंगे उसको भी बैंगलोर के अंदर ही, बैंगलोर की सिटी प्लानिंग के अंदर ही इंक्लूड कर लेना है। तो ये एक तरीका है रूरल को अर्बनाइजेशन की तरफ लेके जाना। दिल्ली एनसीआर में भी यही हुआ है। ये नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, फरीदाबाद हो गया, ये पहले सिंपल सिटीज होती थी। आज की डेट में दिल्ली एनसीआर इतना ज्यादा फैल चुका है, करनाल तक आ चुका है, रोहतक तक आ चुका है। ओके, तो हाँ, ये सब चीजें एक तरीके से रूरल को अर्बनाइजेशन की तरफ लेके जाने की ही स्कीम्स हैं। ओके, नाउ व्हाई दे ऑल आर नॉट इफेक्टिव, ये मैंने अभी आपसे बात करते करते भी मैंने खुद भी बताया था कि ये प्रोग्राम्स तो इतने अच्छे हैं बट ये इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाते हैं। तो फर्स्ट इज ओवर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड करप्शन, ये तो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, थर्ड इज दैट समटाइम्स दे आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, आइडेंटिफिकेशन और टारगेट नहीं हो पाता। एक्चुअली कोई भी ऐसी स्कीम आती है जिसके बारे में सुनना शुरू कर देते हैं, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पुअर फैमिलीज जो होती हैं वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन रजिस्टर्ड है कौन नहीं है उसके लिए। ओके, देन लास्टली ओवरलैपिंग ऑफ दी सिमिलर गवर्नमेंट स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स आ जाती है। अब जैसे 2015 में ही स्किल्स को लेके कितनी सारी स्कीम आई, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो एक टाइम पे एक स्कीम काम करे, ऑलरेडी इतना ओवर पॉपुलेटेड है, थोड़ी आइडेंटिफिकेशन करें, रिसोर्सेज हमारे पहले से ही कम है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं उन सबके, तो उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करेंगे तो तभी ये अचीव हो पाएंगे टारगेट्स हमारे। ठीक है, अब इसके 30 एमसीक्यूज हैं। ओके, देखते हैं हम कितने कवर कर पाते हैं। जो नहीं कवर कर पाएंगे उनको हम या तो कल कवर कर लेंगे, आप उनको स्टडी करना। ठीक है, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इनके एमसीक्यूज। तो वेरी फर्स्ट थिंग, एक सेकेंड में जरा पानी पी लूँ, कंटिन्यूसली आई एम स्पीकिंग। ऑल राइट, so consider first question, consider the following poverty alleviation programs in India: PM Mantri Awas Yojana, National Rural Guarantee Schemes, Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Yojana, and Rashtriya Krishi Vikas Yojana. Which of the above schemes are directly aimed at poverty alleviation? ऑप्शंस देखिए एंड डू लेट मी नो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ABCD, एनीवन? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना तो है ही है। ओके, देन मनरेगा स्कीम इज ऑल्सो देयर। ओके, एंड this is also there, Deen Dayal. Rashtriya Krishi Vikas Yojana is for skills and entrepreneurship. So the correct option is A. फोर्थ नहीं है, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, एलिमिनेट कीजिए कि क्या नहीं है, तो अपने आप ही जो चीजें इंक्लूड हैं उसमें आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपने पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपको याद रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is correct regarding Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act? Read the options and tell me ABCD में से कौन सा होएगा। डायरेक्ट कैश तो ये बिल्कुल नहीं देते। इसमें ये देखो सबसे एग्जैक्ट स्टेटमेंट कौन सी मैच हो रही है अकॉर्डिंग टू द एक्ट। ये 100 डेज के वेज को गारंटी करता है, तो इसका आंसर रहेगा ए। ओके, इट गारंटीज 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। ओके, क्योंकि हाँ, एग्रीकल्चर लेबर की नहीं, ये पूरा एक्चुअली आज की डेट में ये रूरल और अर्बन दोनों के, क्योंकि कनेक्टेड ही हैं सारे,
तो जैसे फॉर एग्जांपल पॉन्ड खोदना है तो उसको तो रूरल के अंडर भी इंक्लूड कर देते हैं, तो इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन एग्रीकल्चरल लेबर के ऊपर नहीं आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर पे नहीं आएगा, ठीक है। रूरल में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है उसके अंडर भी आ जाता है, तो इसलिए सी ऑप्शन नहीं होएगा। और ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए भी नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए है, तो 100 डेज का रहेगा ही रहेगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम विद देयर रिस्पेक्टिव फोकस एरिया। मैच। वेरी राइट। PMAY इज अर्बन एंड रूलिंग आवास योजना, मनरेगा हो गया रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया फूड सिक्योरिटी, एंड PM किसान इज डायरेक्ट बेनिफिट टू दी फार्मर्स। सो A1, B2, C3 एंड D4। ओके, असर्शन एंड रीजन, इनको सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है, पहले रीजन को स्टडी करो और फिर उसको देखो वो असर्शन के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, और फिर चेक करो कि दोनों सही है कि गलत है, और फिर उसके बाद ऑप्शंस मार्क करो। ओके, तो रीड करो, रीजन को एक बार स्टडी कर लेते हैं। दैट इट प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट, यानी कि कुछ फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। असर्शन बोल रहा है दैट PDS इज इन इंडिया ऑलवेज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन पॉवर्टी एलिवेशन। सो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो दोनों एक दूसरे के करेक्ट हैं। ओके, वन मोर थिंग, ये चेक करो कि क्या रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसलिए क्या ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसे ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following programs is specifically targeted at the urban poverty elevation। अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन में कौन सा आ जाएगा भाई, चेक करके बताओ मुझे, चलो ABCD। वेरी गुड। बी, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, करेक्ट ऑप्शन इज बी, NULM, नेशनल अर्बन। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM एम्स टू प्रोवाइड व्हाट। Provide direct employment in government organization, self employment, financial assistance, very good, B। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना, इनमें से कौन सा नहीं है। और इनमें से जो करेक्ट आंसर है ना, वो एक अफवाह भी उड़ी थी कि आप जनधन योजना के अंडर खुलवा लो, आपको ऐसे ऐसे करके मिलेगा, तो चेक करके बताओ मुझे। जीरो बैलेंस अकाउंट, ये सही है। एक्सीडेंट पे इंश्योरेंस कवर, ये भी था इसमें। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी थी। उस टाइम पे अफवाह उड़ी थी कि आप जनधन योजना के अंडर बैंक अकाउंट्स ओपन करा लीजिए, आपको 5,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग था। ओके, दिस इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ जनधन योजना अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, इसी के चक्कर में तो इतने सारे अकाउंट्स खुलवा लिए थे लोगों ने सोच के कि 5,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, चलो जी काम नहीं करना पड़ेगा। एट्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फूड सिक्योरिटी एक्ट। Subsidized food grains, 2/3 of the population. Aims for national security, it replaces the PDS system. तो इसका क्या ऑप्शन होएगा, ऑप्शन A, 1 and 2 ओनली। PDS को अभी रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, टारगेटेड PDS में बल्कि कन्वर्ट कर दिया है उसको। यस। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स नेशनल अर्बन रूरल लाइवलीहुड मिशन। बी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 10th क्वेश्चन, PM किसान स्कीम्स प्रोवाइड इनकम सपोर्ट ऑफ, कितना गारंटी देते हैं कि इतना तो आप अर्न करेंगे ही करेंगे। It is B, 6,000 per year. Which of the following is an objective of National Social Assistance Program NSAP?
सोशल असिस्टेंट यानी कि सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए यानी कि जो डिप्राइव्ड सोसाइटी है उसको ऊपर लेके आने के लिए है। ओके, तो इसमें ना तो फूड ग्रेन्स आएगा ना इसमें स्किल्स आएंगी। सोशल से रिलेटेड कौन से होते हैं, जैसे एल्डरली या विडोज या डिसेबल्ड लोगों की हेल्प करना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा सी। ओके, द टर्म अंत्योदय इन गवर्नमेंट रेफर्स टू व्हाट? बिल्कुल सही, वेलफेयर ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन। अंडर मनरेगा एट लीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ बेनिफिशरीज मस्ट बी विमेन? अगर 100 लेंगे तो उसमें से 33% विमेन होनी चाहिए। ओके, अच्छी है। Which of the following is not a major goal of poverty elevation program in India? Industrial privatization. It is not a major goal. Poverty elevation in India. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाएगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन कराएगी, सोशल वेलफेयर करेगी। इंडस्ट्रियल प्राइवेटाइजेशन यानी कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज प्राइवेट हो सके उसके लिए। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। पढ़िए और बताइए विच इज द बेस्ट ऑप्शन, ABCD। It is D, 1, 2 and 3. Okay. सॉरी ये मॉर्निंग का टाइम पीरियड होता है तो उसमें सब बातें कर रहे होते हैं तो सबको चुप कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization, 16th question, which organization monitors the implementation of Manrega scheme? It is C, Ministry of Rural Development. Okay. नीति आयोग के ऊपर ना एक प्रॉपरली इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर ही कवर होएगा ना, तो आपके सारे नीति आयोग से रिलेटेड डाउट्स कवर हो जाएंगे। संसद आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना यानी कि क्या बनाने आपने, बी, मॉडल विलेजेस। ओके, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। Concept of universal basic income is mainly associated with what? Universal basic income. इसका ए है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स टू ऑल द सिटीजन्स, यानी कि जो भी इनकम अर्न होगी उनके ही अकाउंट में ही डायरेक्ट जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई मिडलमैन होगा और उसके थ्रू आपके पास आएगी। ओके, मिनिमम इतना तो, हाँ मिनिमम इतना तो मिलना चाहिए और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, बाप रे इतना लंबा या नाम, focuses on what? A, how affordable housing, promoting skill development in rural youth, distributing the food grains या establishing cooperatives? कौशल रोजगार योजना यानी कि related to the skill development. So it is very good. It is B, promoting skill development in rural youth. Okay. मिड डे मील स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग व्हाट? ये बहुत इजी है। मिड डे मील एक स्कीम यूज स्टार्ट करी गई थी बच्चों को स्कूल्स की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि ताकि उनको वहां पे खाना वाना मिलेगा तो ज्यादा बच्चे जाएंगे, और आज की डेट में ज्यादातर बच्चे सिर्फ खाना खाने ही जा रहे हैं इस स्कीम के लिए। तो ये था कि मैल न्यूट्रिशन को भी हम खत्म कर देंगे ताकि बच्चों को अच्छे से खाना मिल सके।
तो इसका मेन नेम था ए, रिड्यूसिंग मैल न्यूट्रिशन अमंग द स्कूल चिल्ड्रन। ओके। 21st, the concept of below poverty line in India is primarily based on हाउस होल्ड इनकम लेवल, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एसेट ओनरशिप या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ये मैंने आपको एक बताया था कि अब हम इसको, पहले तो हम इसको कमिटीज के थ्रू चेक करते थे, अब इकोनॉमिक सर्वे में हम क्या चेक करते हैं इसमें कि कौन कितना स्पेंड कर रहा है। तो ये हाउस होल्ड इनकम लेवल्स के थ्रू नहीं है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने आपको बताया ना, HCS, HCES सॉरी, ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्कीम्स के अकॉर्डिंग ये निकाला गया है। ओके। और उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि कितनी लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फोकसेस ऑन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, सो इट इज 22 का ए, डेवलपिंग मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए 2-3 मिनट्स रहेगी, मैं इसको फटाफट से फिनिश करती हूँ। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना? गरीब कल्याण अन्ना योजना, हाँ बिल्कुल सही, ए, इट प्रोवाइड्स फ्री फूड ग्रेन्स टू एलिजिबल बेनिफिशरीज अंडर NFSA। नेक्स्ट इज 24th, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लीनिएज प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच बैंक? कौन सा बैंक सपोर्ट करता है, मैंने आपसे आपको बताया भी था, नबार्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, अच्छे से सुनना है आज आप लोगों ने मेरा पूरे लेक्चर। नबार्ड बैंक्स ना 1984 में इस्टेब्लिश करे गए थे बैंकिंग स्कीम्स के अंडर ही, और इनका मेन पर्पस था एग्रीकल्चरल और रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए। ओके, हाँ जी, नबार्ड बिल्कुल सही, RBI नहीं है, नबार्ड है। RBI तो वो है, सुप्रीम बैंक है, ऑन लेंडर एट द लास्ट रिजॉर्ट। 25th बैंक, अन्नपूर्णा स्कीम प्रोवाइड्स, अन्नपूर्णा फूड से रिलेटेड है, राइट? सो दिस इज फूड सिक्योरिटी टू डेस्टिट्यूट सीनियर सिटीजन्स, बी। ओके, सीनियर सिटीजन का भी तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कादमश्री प्रोग्राम फोकसेस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड पॉवर्टी एंड दिस वाज लॉन्च्ड इन, ये तो आंख बंद करके मुझे एक बच्चे ने भी बताया था कि ये केरला से ही स्टार्ट हुआ था। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज केरला, 1988। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Which of the following is the major feature in राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना? बीमा योजना में क्या आ जाता है? BPL फैमिलीज को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, विच गवर्नमेंट स्कीम इज नोन एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम? सबसे ज्यादा फेमस आज की डेट में, मैक्सिमम, इसको ना यूनेस्को वालों ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया था, मनरेगा प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम। ओके, क्योंकि इन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया था। 29th, जब हम छोटे होते थे ना तो हमारे घर में केबल नहीं लगा हुआ था, DD1 नहीं लगा होता था, तो उसके ऊपर तो इसकी इतनी एड आती थी ना, पूरा पूरा टाइम इसी की एड चलती रहती थी। 29th, अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम बैंक लोन्स विल बी प्रोवाइडेड टू? स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ये एक स्कीम है विमेन एंटरप्रेन्योर जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, उनके लिए है ये, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, या उनको एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के आइडियाज की हेल्प करने के लिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, विच पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम प्रोवाइड्स पेंशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं ना, जहाँ पे प्रॉपर आपके एम्प्लॉयमेंट पैसे आपको डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, मतलब आपको वेजेस सेट नहीं होती है, रजिस्टर्ड नहीं होते हो आप किसी एम्प्लॉयमेंट के अंडर, उसके लिए, तो स्कीम के लिए है ए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। चलिए फिर इसको फिर अभी मैं वाइंड अप करती हूँ, ठीक है? इसको स्टडी कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कल पूछिएगा, कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके देन, बाय बाय।